नमस्कार। डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आपके जितने भी सवाल हैं कोविड-19 से जुड़े हुए, जितने भी भ्रम हैं, उन सबको स्पष्ट करने के लिए और उन सबके जवाब लेकर हम हाजिर होते हैं डॉक्टरों के साथ। और आज का ये कार्यक्रम इन मायनों में अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज तो विश्व पर्यावरण दिवस भी है। और जैसा हम सब जानते हैं कि जब ऐसी महामारियां आती हैं तब यही सवाल उठता है और यही जवाब मिलता है कि प्रकृति से हम अपनी दूरी बना रहे हैं, जिसकी वजह से ये महामारियां खासकर पिछले कुछ सालों में हमें देखने को मिल रही हैं। तो एक सबक, एक सीख आज के इस दिन से लेते हुए आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा, मेरे साथ है प्रीति कौर। Yes, thank you, Mamta. You're watching Doctors Speak, and in a while from now, we'll have doctors joining in, and you can put your questions to them on the numbers that are being flashed on your screens. You can also ask questions on our social media platforms. And remember, it is an important day because we know that Unlock 1 has already begun, and today the MHA has issued guidelines for restaurants, for public places, for religious places to reopen from 8th of June. How important is that, and what precautions we need to keep on taking from here on? We will talk more about that as well. And also, if you've got specific questions, do ask our doctors. But remember to keep the volume of your television sets on a low mode. We're joined in by two doctors today. Let's introduce them. We're joined in by Dr. Aparna Agrawal. She is Director Professor, Department of Medicine, Lady Harding Medical College, and also Dr. Rupali Malik, Associate Professor Medicine, VMMC and Safdarjung Hospital, will be joining us in a short while from now. Welcome, Dr. Aparna. When we talk of the day today, as my co-anchor put, it is the World Environment Day. Added to that, also we will have the religious places and also shopping malls and other market areas. You know, they will be completely and fully open from 8th of June. Also added to this, the guidelines have been issued by the MHA. Put all this together, I would want you to first evaluate and assess for us the fight we've had all this while against COVID-19. Where are we standing right now? We have to be careful. The cases are bound to increase with opening up of the lockdown, and we have to be prepared for that. Having said that, we should not fear this, and we have to take all adequate precautions. We have been emphasizing and re-emphasizing on the benefits of hand hygiene, using a mask for respiratory hygiene, and social distancing. So that we have to maintain. And we have to balance economy with health. So we cannot continue with lockdown forever. So we have to be careful. We have to exert or take all precautions and proceed with life. राइट। डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल, जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि आज पर्यावरण दिवस है और ये भी देखा जा रहा है कि इस कोविड-19 पैंडेमिक के चलते पर्यावरण, जहां एक और हमें इसकी सकारात्मक तस्वीर मिल रही है तो वहीं दूसरी ओर एक ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या इसके चलते समस्याएं भी बढ़ रही हैं। खासकर जब हम प्लास्टिक की बात करते हैं, हम प्लास्टिक ग्लव्स की बात करते हैं, पीपी किट्स की बात करते हैं, मास्क की बात करते हैं, जिनका सही तरीके से निस्तारण बहुत ज़रूरी है अगर हमें अपने आप को भी सेफ रखना है और साथ ही पर्यावरण को भी हमें स्वच्छ रखना है। यही जानना चाहेंगे आपसे कि क्या सही तरीका है हमारे ग्लव्स, हमारे मास्क को अगर हमें यूज़ कर चुके हैं और वो हमें डिस्पोज ऑफ करने हैं तो उनको डिस्पोज ऑफ करने का सही तरीका क्या है? जो नॉर्मल पर्सन्स जब हम लोग डिस्पोज ऑफ करते हैं तब हम एक क्लोज्ड बिन में उसको डिस्पोज ऑफ करें और वो रूटीन वेस्ट के साथ में जा सकता है। लेकिन अगर कोई कोरोना संक्रमित पर्सन और उनके केयर टेकर्स जब ये मास्क, ग्लव्स डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उनको सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में डिप करके आधे घंटे रखें और उसके बाद उसको अलग से डिस्पोज ऑफ करें। इन सब घरों में मार्क लगा रहता है और ये बायो डिस्पोजेबल ग्रेड के साथ अलग से डिस्पोज ऑफ होता है, जिसका गवर्नमेंट ने इंतजाम किया हुआ है। हॉस्पिटल में भी ये वेस्ट, इन सब का पीपी किट्स हैं, मास्क हैं, ग्लव्स हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में संक्रमित लोग होते हैं, सब सिक्रीशंस के कांटेक्ट में आता है, तो ये जैसे बायो डिस्पोजेबल
बायो वेस्ट डिस्पोज करते हैं उस हिसाब से डिस्पोज होने चाहिए। जी, यानी और कि पूरा इसको एसओपी पहले, बना हुआ है और इसके हिसाब से ही हाँ जी, डिस्पोज ऑफ किया जाता है, चाहे हम बिल्कुल मास्क की बात करें या बिल्कुल। पीपी किट्स की बात करें, जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनकी बात करें या फिर अस्पतालों की बात करें। इस वक्त डॉक्टर अग्रवाल हमारे साथ आर के सप्रू जुड़ गए हैं अपने सवाल के साथ। सप्रू जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सप्रू जी अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। जी कैन यू जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ Yes, रही है you're आपकी audible. आवाज। जी मैं ये पूछना था, आजकल मार्केट में बहुत सारे यूवी चेंबर आ गए हैं फॉर सैनिटाइजिंग वेरियस इक्विपमेंट्स लाइक मोबाइल फोन और पेपर। तो ये इज इट ओके, आई मीन कैन दे बी यूज फॉर सैनिटाइजिंग द पेपर और मोबाइल फोन और व्हाटएवर? कुछ जगह बोलते हैं खाली बैक्टीरिया के लिए काफी है, ये वायरस के लिए ठीक नहीं है यूवी लाइट, तो इट कैन नॉट किल। तो डज इट किल दीज वायरसेस जो इसके कोविड के हैं? Yes, Dr. Aparna, he wants his doubts regarding sanitizers to be cleared. सैनिटाइजर, मेरे को पहला वाला पार्ट सुनाई नहीं दिया क्लियरली कि कौन से चीज से वो सैनिटाइज करने का पूछ रहे हैं। He's talking of the regular sanitizers we use to sanitize our hands. Can those sanitizers Regular, be used yes. to sanitize our phones and other objects as well? Yes. All, if we have 60 to 70% alcohol, which is supposed to be there in the usual sanitizers, that is adequate to sanitize our mobile phones, keys, and everything else. At home, if we don't have a positive patient, then we can use the usual household disinfectants for sanitizing everything. In hospitals and wherever we have positive corona patients, it is better to use either bleach solution, sodium hypochlorite solution, or 70% alcohol solution. Sanitizers which have these. That was about sanitizers, ma'am. But when we talk of wearing face masks, you have to keep your face covered. Explain to us what is the difference between N95 mask and a standard mask. There is a lot of doubt amongst the people that can a standard mask, or for that matter even a homemade mask, does that also function in the same way as the N95 mask, and does it actually provide a flush on the face? No, ordinary cloth mask, you can breathe through that. So if we maintain social distancing of at least 1 meter and both the persons are wearing a cloth mask, then it is quite good for preventing infection. If you have not maintained the distance, then it may not be adequate. In the hospital, we advise the 3-layered surgical mask for all healthcare workers and all frontline workers. We should use at least a 3-layer surgical mask. For people who are looking after positive patients, we need an N95 mask because protection is better with it, because we need to come in closer contact with the patients. We cannot avoid being closer to the patients whenever we are looking after positive patients. So we need to do that. At home, that is why we advise for all caretakers of COVID positive patients, they should wear a 3-layered surgical mask is good enough. And the जी। caretakers should maintain a distance with them. The 3-layered mask is good enough. जी अपर्णा जी, इस वक्त हमारे साथ आरती जुड़ गई हैं अपने सवाल के साथ। आरती, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। माफ़ी चाहते हैं, फ़ोन कट गया। लेकिन सोशल मीडिया पर एक सवाल आया है डॉक्टर अग्रवाल। अजीत उपाध्याय पूछ रहे हैं कि वो कोविड पॉजिटिव आने के बाद रिकवर कर चुके हैं, लेकिन उनके फेफड़ों में थोड़ा दर्द रहता है, वो अब क्यों होता है और उनको क्या कोई खास एहतियात बरतनी चाहिए? वो रिकवर कर गए हैं, क्लिनिकली रिकवर किए हैं, या उनका टेस्ट नेगेटिव आ गया है, ये चीज जरूरी है। आजकल नॉर्मल पेशेंट्स में एडवाइस के हिसाब से, गाइडलाइंस के हिसाब से टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उनको 2 वीक्स हो गए हैं और छाती में दर्द अभी भी बना हुआ है, तो बेटर ये है कि उनको एक टेस्ट करवा लेना चाहिए टू सी दैट ही इज नेगेटिव। इफ 2 टेस्ट्स आर नेगेटिव एंड इज प्रूव नेगेटिव, तो फिर वो सिंपल पेन किलर्स ले सकते हैं छाती में दर्द के लिए, और कोई एहतियात की जरूरत नहीं है उसके अलावा। जी, एक और सोशल मीडिया पर सवाल आया है उपेंद्र शर्मा का। फेसबुक पर वो हमारे फेसबुक पेज पर पूछ रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में वो कह रहे हैं कि उन्हें प्रॉब्लम हो रही है गले की, उनको हल्का फीवर भी है और बॉडी पेन भी हो रहा है,
तो वो ये पूछ रहे हैं कि ऐसे सिनेरियो में उनको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्योंकि कोविड-19 का इस वक्त जिस तरीके का फैलाव है उसको देखते हुए वो ये भी पूछ रहे हैं कि क्या मास्क पहने रहना ही सिर्फ काफ़ी है? पहली बात ये कि अगर उन्होंने कहीं से ट्रैवल किया है, कहीं या बाहर जाते हैं रेगुलर, या किसी पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं, या फ्रंट लाइन वर्कर हैं, हेल्थ केयर वर्कर हैं, या हाई रिस्क कांटेक्ट है, तो फिर उनको टेस्ट करवाना चाहिए, या फिर वो कंटेनमेंट जोन से हैं। ये सब होने से उनको ये जो सिम्टम्स हैं वो ILI जो हम इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस बोलते हैं वो है, और फिर उनको टेस्ट करवाना चाहिए। अगर वो इन सब कैटेगरीज में नहीं फिट होते हैं तब वो सिंपल ये फीवर के लिए दवाई और कोल्ड के लिए दवाई ले सकते हैं, गला खराब के लिए वार्म सेलाइन गागल्स कर सकते हैं, और घर में वेट करके देख सकते हैं कि सिम्टम्स इम्प्रूव हुए कि नहीं। अगर दर्द होता है, कंफ्यूजन होती है या ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है तो डेफिनेटली हॉस्पिटल जाके चेक करना चाहिए। Right, these are the early symptoms. सेकेंड पार्ट कि अगर वो फेस मास्क पहने रहें और घर में अपने को अलग रखें इस पीरियड में बाकी लोगों से, तो उतना क्वारंटाइन उसको बोलते हैं, सेल्फ क्वारंटाइन, वो एडिक्वेट है। All right, you're talking of self-quarantine. We'll talk more about it, but at this point we're joined in by our other panelists. We're joined in by Dr. Rupali Malik, Associate Professor Medicine, VMMC and Safdarjung Hospital. Welcome, ma'am, to the show. Thank you for joining in. To begin with, we'll have a caller's question. Mr. Manish is joining us. Mr. Manish, he is joining us from Lakhisarai. Please ask the question. मैम, मैं 27 को ट्रेन से आया दिल्ली से बिहार के लिए, तो राजधानी में, तो मैं 10 डेज का क्वारंटाइन रखूं या फिर 14 डेज का? अब तो 10 डेज होने वाला है। जी मनीष, आप अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिए और आप अपना सवाल जारी रखें। हाँ मैम, तो क्वारंटाइन मुझे क्या 10 डेज इनफ है या फिर 14 डेज रखना चाहिए? डॉक्टर मलिक, आप जवाब देंगे? डॉक्टर रूपाली मलिक, आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। कोई बुखार? हाँ जी, जी बिल्कुल। मैं पूछना चाहती हूँ मनीष, आपको कोई सिम्टम्स है इस समय? अभी कोई सिम्टम्स आपको? बुखार, खांसी, जुकाम, कोई सिम्टम ऐसे? हेलो मनीष, आपको कोई सिम्टम है? आपको खांसी, जुकाम जैसा या बुखार जैसा कोई लक्षण नजर आ रहा है? नो मैम, मेरे साथ 3 आए थे, तीनों के तो कोई लक्षण नहीं दिख रहे, ना खांसी, ना सर्दी, ना जुकाम। और आपको भी कोई लक्षण नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मेरे को भी कोई लक्षण नहीं। जी डॉक्टर, देखिए वैसे 90% लोग जो है एक हफ्ते के अंदर अगर उनको कोरोना होता है तो सिम्टम्स शो करते हैं। अगर आपको 10 दिन के बावजूद सिम्टम्स नहीं है तो घबराने की बात नहीं है, बट फिर भी अगर आप एहतियात बरतना चाहते हैं 4 दिन के लिए और 14 डेज के लिए, तो वो आप कर सकते हैं। आप ऑलरेडी 10 दिन से एहतियात बरत रहे हैं, 4 दिन के लिए और बरतना चाहते हैं तो वो बरत सकते हैं, बट फिर भी चांसेस बहुत कम है। 90% लोग जो हैं आपके पहले हफ्ते में ही सिम्टम्स को शो कर देते हैं अगर उनको सिम्टम्स करने होते हैं, बट फिर भी आप एहतियात 14 दिन तक यानी कि 2 हफ्ते तक बरत सकते हैं। All right, before heading to this question, we were talking of self-quarantine and the precautions which we can take. Dr. Malik, when we talk of the person who is in self-quarantine, that person has to take care of himself. But then I would want you to tell us more about the precautions and the safety measures which the person's taking care of the self-quarantined person. What precautions have to be taken specifically by the person taking care of a self-quarantined person? Yes. देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, जो भी आपका फैमिली मेंबर who is going to take care of that quarantined person should be free of any other disease or comorbidities. मतलब जो आदमी उस क्वारंटाइन पर्सन का ध्यान रखेगा उसको खुद को कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर, कोई हार्ट डिजीज, कोई लंग डिजीज, कोई किडनी डिजीज या कोई भी इस तरह की क्रॉनिक इलनेस उसको नहीं होनी चाहिए। सो प्रेफरेबली जो बंदा जो आपका फैमिली मेंबर है जो आपका ध्यान रखेगा, ही और शी शुड बी डिजीज फ्री, ये प्रेफरेबल है। उसके बाद दे शुड ऑलवेज स्टे इन अ सेपरेट रूम।
जो क्वारंटाइन पर्सन है उसके लिए एक डेडिकेटेड रूम और एक डेडिकेटेड वॉशरूम होना चाहिए। उस वॉशरूम को बाकी घर में जितने लोग हैं उनको नहीं यूज करना चाहिए। एंड जब भी जो आपका केयर टेकर है, जब भी वो आपके कॉन्टैक्ट में आता है, he or she should always be wearing a mask, a triple layer surgical mask and gloves if possible। ठीक है, ग्लव्स पहन सकते हैं और ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क पहन सकते हैं। बाकी जितना भी लिनन यूटेंसिल्स जो भी आपका क्वारंटाइन पर्सन यूज कर रहा है उसको घर में बाकी कोई भी और व्यक्ति यूज नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उनकी बेड शीट्स हैं, जो उनके रूम में जो भी आपके लिनन यूज होता है या जो कपड़े वो पहनते हैं, उनको बाकी सभी घर के लोगों से दूर रखना है और उनको सेपरेटली धोना है। उनको गर्म पानी में धो के धूप में सुखाना है। मशीन वॉश भी कर सकते हैं एट अ हायर डिग्री टेम्परेचर ऑफ 60 to 90 डिग्रीज। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेडिकेटेड यूटेंसिल्स, डेडिकेटेड लिनन and the caretaker should always wear a mask and gloves if possible whenever they are coming in contact। another thing is जो भी उनका रूम क्लीन करेगा सोडियम हाइपोक्लोराइड से, they should always be wearing a plastic apron also। आप जब कमरे की सफाई करते हैं उनकी, उस टाइम अगर आप प्लास्टिक एप्रन पहन लेंगे एडिशनली इन एडिशन टू योर मास्क एंड ग्लव्स, तो वो और भी आपके लिए एडिशनल प्रोटेक्शन हो जाएगा। सो प्लास्टिक एप्रन पहन के उस कमरे की सफाई करें अगर पॉसिबल है तो, और साथ में ग्लव्स पहने और आप अपना मास्क जरूर पहने। और जो भी मास्क होते हैं जिसमें सिक्रीशंस होते हैं कोविड पेशेंट के या क्वारंटाइन पेशेंट के या सस्पेक्टेड पेशेंट के, उनको बड़ा केयरफुली डिस्पोज करना है। वो उनको अलग से पैकेट में बंद करके बहुत केयरफुली क्लोज डस्टबिन में डिस्पोज करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आप सेल्फ क्वारंटाइन में जब आप घर पे होते हैं तब आपको ध्यान रखनी है और आपके केयर टेकर को। जी डॉक्टर मलिक, इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक भी अपने सवाल के साथ जुड़ गए हैं। रितेश पटना से सवाल पूछना चाहते हैं। रितेश, आप अपना सवाल पूछें। Ritesh, if you are audible, please ask your question. Yes, ma'am. Yes, please ask your question, but make sure that the volume of your television set is on a low mode. यस मैम, नमस्ते। मेरा 1 महीने से शॉर्टनेस और ब्रीथ का प्रॉब्लम हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही, तो डॉक्टर के पास मैं गया था। ठीक है जी जी, प्लीज कंटिन्यू। तो डॉक्टर साहब ने स्टेथोस्कोप से चेक किया, बोला कि नहीं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं है। टेस्ट के लिए उन्होंने रेकमेंड नहीं किया। अभी 1 महीने हो गए, फिर भी अभी सेम प्रॉब्लम हो रहा है, शॉर्टनेस और ब्रीथ। कभी कभी चेस्ट में थोड़ा पेन भी होता है। जी डॉक्टर अग्रवाल, आप जवाब देना चाहेंगे? आपके सिम्टम्स आप जैसा बता रहे हैं सेम है। खांसी, वो सांस की तकलीफ बढ़ी नहीं है, छाती में दर्द की तकलीफ बढ़ी नहीं है, 1 महीने से सेम है, तो फिर कोरोना के चांसेस कम है। लेकिन और रेस्पिरेटरी क्या बीमारी है उसकी जांच जरूर होनी चाहिए। आपको खांसी या बुखार है क्या? रितेश, आपको खांसी या जुकाम बुखार जैसा कोई लक्षण है? हमें ना खांसी है मुझे, बट थोड़ी बलगम निकलती है जब खांसी होती है। और बुखार? बुखार है क्या आपको? बुखार नहीं है, और थोड़ी बहुत ही। हेलो Dr. Agarwal, you can continue. I mean, you can give us the advice for both the cases, even if the person has fever and cough, and even if our caller does not have fever and cough. We would like to hear on both the cases. So if the patient has fever and cough, they must get it checked. Chances of corona are less because the symptoms are static for the last 1 month. But we should rule out tuberculosis or other viral illness or bacterial illness, or it could be pneumonia with some infection also. It has to be checked. So he should get a checkup done. जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी पूछा गया था डॉक्टर अग्रवाल कि अगर खांसी के साथ बलगम है तो क्या वो कोविड-19 के उसमें चांसेस क्या रहते हैं? कोविड-19 पर से में सूखी खांसी होती है, लेकिन सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं और हल्की बलगम हो सकती है। इन्होंने जैसे कहा कि थोड़ी सी बलगम आती है, तो हल्की बलगम इज पॉसिबल। यूजुअली इनिशियली ड्राई कॉफ होता है जिसमें बलगम नहीं होती है, और सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन या अदर कॉम्प्लिकेशन से हो सकता है। इनको चांसेस कम लगते हैं कोरोना के। All right, we'll get our next caller from here. Ritu is joining us from Ghaziabad. Ritu, welcome to the show. Please ask the question. Ma'am, my question is
कि मुझे थोड़ी खांसी है बट बलगम है उसमें, एंड हमें थोड़ी बहुत ही टाइटनेस है बट मॉर्निंग में, जैसे मॉर्निंग सिकनेस है। उसके अलावा टेस्ट एंड स्मेल हमारा बेटर है, वो हम थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक कर रहे हैं। Yes, Dr. Malik, would you address that? बार फिर से रिपीट करेंगे आपकी वो Yes, Ritu, Symptoms. please repeat the question. बट वो बलगम वाला है एंड टाइटनेस है, थोड़ी सी वीकनेस है बट वो मॉर्निंग में है, लाइक जब हम ड्यूरेशन क्या है और आपके उसके अलावा symptoms का टेस्ट एंड स्मेल हमारा नॉर्मल है बिल्कुल। ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स क्या है थोड़ी थोड़ी देर बाद, बट हमें Duration of ड्राई बिल्कुल लेनी है। जी ऋतु, डॉक्टर पूछना चाहते हैं आपसे कि ड्यूरेशन क्या है इसका? मैम खांसी का ड्यूरेशन मैम अप्रोक्सीमेटली 2-3 घंटे के बाद मुश्किल से आती थोड़ी सी। कितने दिन से आ रही है, कितने दिन से आपको ऐसा लग रहा है? कितने दिन से ऋतु आपको ये समस्या है? मैम ये इस वीक जब वेदर चेंज हुआ है ना तब है। और फीवर है आपको? बेटर था। फीवर है साथ में कुछ? क्या आपको फीवर भी है, बुखार भी आ रहा है? नो मैम फीवर नहीं है बिल्कुल भी, हमने चेक किया है, फीवर नहीं है। ठीक है, देखिए मुझे जितना लगता है आपके जो सिम्टम्स सुन के तो कोरोना जैसा तो नहीं लगता है। अगर आपको फीवर नहीं है, केवल खांसी है और वो भी कुछ बलगम के साथ आप बता रहे हैं, बाकी चीजें ठीक है और अभी 3-4 दिन के सिम्टम्स हैं, तो मुझे लगता है वेट कर सकते हैं क्योंकि फीवर बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। लगभग 80% पेशेंट्स में फीवर होता है, तो फीवर के बिना और आपकी कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है, आप किसी ऐसे पॉसिबल पेशेंट के कॉन्टैक्ट में तो नहीं आए हैं जिसको कोरोना हुआ हो, ऐसा तो कुछ नहीं, कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री भी नहीं है। तो अगर कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं है, फीवर नहीं है, तो मुझे लगता है ये कोरोना तो नहीं लगता है मुझे। और बाकी आप अपना जो नॉर्मल कफ के लिए आप जो लेते हैं, आप कोई कफ सप्रेसेंट ले सकते हैं, जो आप अपना होम रेमेडीज जो करते हैं, आप अपना होम रेमेडीज ट्राई कीजिए। बट अगर कफ बढ़ता है या फिर अगर आपको फीवर आता है तो आप अपना जो भी आसपास जो भी डॉक्टर हैं उनसे आप जाके मिले, और या ये इम्पोर्टेंट रहेगा, या एंटीबायोटिक शुरू करें अगर आपको ये कफ की प्रॉब्लम बढ़ यानी ऋतु बहुत जरूरी है होम रेमेडीज कर सकते हैं। जी ऋतु, ये जरूरी है कि ये समझना और ध्यान करना कि आप किसी कोविड पॉजिटिव मरीज के संपर्क में तो नहीं आए या व्यक्ति के संपर्क में तो नहीं आए, उसके बाद फीवर आपको नहीं है, तो डॉक्टर मैडम का कहना है कि आप अभी सेफ हैं। लेकिन एक और कॉलर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं, अरुण। अनिल जुड़ गए हैं दिल्ली से। अनिल, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। मैम हेलो जी। मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे हम मास्क लगा के बाहर जाते हैं तो उससे हमारा नोज और माउथ कवर होते हैं, बट आईज और ईयर कवर नहीं होते, तो आईज और ईयर के थ्रू भी वायरस हो सकता है? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम बालकनी वगैरह में खड़े होते हैं तो पिजन वगैरह आते हैं वहाँ पे, तो पिजन के थ्रू भी कुछ कोविड के चांसेस हैं क्या? Transmission of COVID through birds is what our viewer wants to know. Dr. Agarwal, would you address that? Second is eyes और ear के थ्रू भी हो सकता है? दो सवाल। थ्रू तो ट्रांसमिशन नहीं नोन है, उससे कोई डर नहीं है आपको। बाकी आईज के थ्रू डेफिनेटली जा सकता है, क्योंकि आईज में भी मिकोजा है, इसके थ्रू जा सकता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आपको आईज, नोज और माउथ टच करना अवॉइड करना है। और अगर आपकी आदत है कि फेस बार बार छूते हैं तो एक चश्मा लगा लीजिए। तो चश्मा लगा लेंगे तो डायरेक्ट आईज में टच करना मुश्किल होगा। अगर आपका नंबर नहीं है तो बिना नंबर के ग्लासेस लगा सकते हैं, लेकिन ये आदत अपनी थोड़ी सी चेंज करनी होगी। जो बार बार आंख, नाक या मुंह पर जो हमारे हाथ जाते हैं, वो हम सबको ये आदत चेंज करनी होगी। जहाँ तक ईयर्स का सवाल है, ईयर्स में मिकोजा बहुत अंदर होता है, हम लोग उतने अंदर टच नहीं कर पाते हैं उंगली से, तो ईयर्स से उसके जाने की संभावना बहुत कम। All right, from here we get our next caller. Mr. Mayank is joining us. Mr. Mayank, please ask the question. हेलो। Yes, Mr. Mayank, please proceed with the question. डॉक्टर नमस्कार। डॉक्टर, मेरी रिपोर्ट जो है ना 10 तारीख को पॉजिटिव आई थी। हेलो। Yes, please continue. मेरी रिपोर्ट 10 तारीख को पॉजिटिव आई थी, तो फिर मेरे को सिम्टम्स कुछ नहीं थे, ना बुखार, ना खांसी, ना जुकाम। तो मैंने 1 जून को कराया रिपोर्ट द्वारा, तो मेरी रिपोर्ट फिर पॉजिटिव आ गई। तो मेरे को क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? डॉक्टर मलिक, आप बताना चाहेंगे एसिम्प्टोमेटिक केस की बात है? जी मैम। बिल्कुल, आप अभी एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हैं,
तो इसलिए आपको अभी एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। जब तक आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तब तक आपको ध्यान रखना है, आपको हर समय मास्क लगा के रखना है, बाकी लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना है, आपको आइसोलेशन में रहना है, बहुत जरूरी है। जब तक आपकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आती है तब तक आपको आइसोलेशन में रहना है। आप अकेले रहते हैं या फैमिली के साथ रहते हैं या कहीं पे एडमिटेड हैं इस समय? क्या आप अकेले रहते हैं? डॉक्टर सवाल पूछ रहे हैं आपसे। जी मैम, अकेले रहते हैं, अकेले रहते हैं। अकेले रहते हैं तो फिर भी ठीक है, बट बाकी आपकी जो मेड है ये सब है, आपको इनसे भी दूरी बना के रखनी है। आपको अपना जो सामान जो है उसके लिए भी आपको अपने अड़ोसी पड़ोसी की हेल्प लेके आपको सब मंगा लेना चाहिए। आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, बाकी लोगों से दूरी बना के रखना है। और क्योंकि जब तक टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव है इसका मतलब वायरस अभी भी है। अप टू 45 डेज तक भी देखा गया है कि कभी कभी टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। तो इसलिए अभी आपको ये आइसोलेशन, स्ट्रिक्टली आइसोलेशन आपको अपना करना पड़ेगा। Alright, Dr. Malik, we are talking of asymptomatic case here. Now, what I want to understand from you is the ground zero for COVID-19 would be the lungs. This is, what we have learned and what we've understood till now. But how vulnerable are other organs also in the body? As we just heard our caller, he said that he's asymptomatic, no symptom at all, but he tested positive. So, on one hand, we have such a scenario. On the other hand, we have extreme symptoms which are, visible and which are witnessed by the patients. So, when is it that you need to see a doctor, or when is it that you are near the danger level? Added to this and also added to that, I would want you to understand from you how vulnerable are other parts of the body to COVID-19? Yes. I would like to tell you that the most important Alright, I think yes, please continue. We have various other presentations. We have various other presentations which include myocardial infarctions. Patient heart attack के साथ आता है, उसके लिए admit होता है, and later on they are found to be COVID positive. Patient can present with stroke. आपको paralysis हो सकता है, stroke हो सकता है. Patient can come with diarrhea, GI symptoms. So, जो viral illnesses होती हैं, they are multi-system involvement. They have multi-system involvement. So, मैं ये कह सकती हूँ कि कोई भी अंग आपका ऐसा नहीं है जिसको हम कहें कि इस इन्फेक्शन से ये अंग अफेक्ट नहीं होगा। कोई भी अंग अफेक्ट हो सकता है। लिवर फंक्शंस डिरेंज हो सकते हैं, किडनी फंक्शंस डिरेंज हो सकते हैं, पेशेंट्स को डायरिया हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक, मायोकार्डाइटिस हो सकता है। सो यू कैन हैव वेरिड प्रेजेंटेशन। और बाकी किस पेशेंट को सिम्टम्स होंगे, किसको नहीं होंगे, ये हमारे इंट्रिंसिक इम्यून लेवल पे डिपेंड करता है। आपकी खुद की इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है। अगर आप इफ यू आर स्ट्रांग इनफ तो आप एसिम्प्टोमेटिक कैरियर रह के निकल जाएंगे। बट अगर आपकी इम्यूनिटी कम है, आप इम्यूनोसप्रेस्ड हैं या आप किसी और बीमारी का शिकार हैं, तो ज्यादा चांसेस हैं कि आपको ये वायरस जो है ज्यादा अफेक्ट करेगा और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस कॉज करेगा। जी डॉक्टर मलिक, यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। नितेंद्र दिल्ली से अपना सवाल पूछना चाहते हैं। नितेंद्र, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर जी। मुझे कोल्ड है 4 दिन से, और साथ में नाक में, नोज में दर्द और थोड़ा गले में भी दर्द है। तो ये सिम्टम हो सकते हैं क्या कोरोना के? और कब से है आपको ये जुकाम? ये लास्ट 4 डेज से है, और आज मुझे थोड़ा पेन भी हो रहा है छाती के ऊपर वाले हिस्से में। डॉक्टर अग्रवाल, अगर छाती में अगर दर्द हो रहा है तो आपको डेफिनेटली आपके हेल्थ केयर वर्कर को कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि खांसी जुकाम आपने बोला था पहले कि शायद पॉजिटिव आए हैं। नहीं, उन्होंने ये नहीं बताया डॉक्टर अग्रवाल, लेकिन ये कहा है कि अच्छा। हाँ, उनको छाती में दर्द है, 3-4 दिन से उनको जुकाम है। छाती में दर्द एक सिम्टम है जिसमें हम बोलते हैं कि आप अपने हॉस्पिटल को कांटेक्ट करिए पास वाले। छाती में दर्द हो या सांस लेने में तकलीफ हो या फिर थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन ऑफ सेंसोरियम होए, तो फिर आपको अपने पास वाले हॉस्पिटल को जरूर कांटेक्ट करना चाहिए। आपका टेस्ट होना चाहिए और आगे वो बताएंगे कि क्या करना है टेस्ट के रिपोर्ट के बाद। जी डॉक्टर अग्रवाल, हमारे पास सोशल मीडिया पर भी सवाल आ रहे हैं, वो भी ले लेते हैं। फूल कुमार फोगट सऊदी अरब में काम करते हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं कि इनको इनकी कंपनी, जो तेल कंपनी है, उसने इनको कॉटन का मास्क दिया है। क्या यह मास्क ही काफी है और सेफ है? और वो ये भी कह रहे हैं कि क्या लंग्स के लिए कुछ एक्सरसाइजेस की जा सकती हैं
कोविड-19 को दूर रखने के लिए? लंग्स की एक्सरसाइजेस इम्पोर्टेंट है सबको अपनी लंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। कोविड-19 से लंग की एक्सरसाइजेस का कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। ये जरूर है कि जिनके लंग्स इन्फेक्टेड हैं, किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं, उनको चांसेस ज्यादा सीवियर डिजीज होने के चांसेस होते हैं। और जहां तक बात कॉटन मास्क की है, सब पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए रिकमेंडेड है कॉटन मास्क ही। वो आपको इनफ प्रोटेक्शन देगी अगर आप फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे और आपके साथ वाले सब कॉटन मास्क पहनेंगे। अगर आप फ्रंट लाइन वर्कर हैं, पुलिस में हैं, रेल लाइन में हैं, सैनिटेशन वर्कर हैं, हेल्थ केयर वर्कर हैं, तो फिर जरूर आपको ट्रिपल लेयर मास्क की जरूरत है, नहीं तो सिंपल कॉटन मास्क multi-layered is enough. Okay. All right. We have our next caller joining in. We are joined in by Ms. Nisha from Noida. Ms. Nisha, please ask your question. Yes, ma'am. मैम आजकल जैसे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो टिफिन ले जा रहे हैं, वो स्टील मटेरियल का है, तो फिर घर आके फिर उसे नॉर्मल बर्तन की तरह ही वॉश करना है हमें। और मेरा दूसरा सवाल है कि जैसे सब्जी वगैरह जो ऑनलाइन हम मंगवाते हैं, तो अगर उसे 10-12 घंटे हम घर में कहीं एक साइड रखें और फिर यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग, मतलब फ्रिज में रख के फिर जैसे जब यूज करना है तो यूज कर सकते हैं। Alright, Dr. Agrawal, would you take that question? अगर हस्बैंड ऑफिस से आ रहे हैं, स्टील के बर्तन हैं, उनको आप नॉर्मल तरीके से धो सकते हैं, बिल्कुल साबुन, क्योंकि साबुन से कोरोना वायरस डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो नॉर्मली हम लोग साबुन से ही धोते हैं, तो साबुन से आप धो सकते हैं और कोई स्पेशल उसको धोने की जरूरत नहीं है। और सेकंड, सब्जियां अगर आपने थोड़ी देर बाहर रख दी, उसको धोना आवश्यक है। तो या तो थोड़ी देर बाहर अगर रख सकते हैं, आजकल मौसम ऐसा है कि कई बार सब्जियां खराब होने का डर रहता है, आप उसको अच्छे से धो करके पेपर पर सुखा लें कुछ देर, उसके बाद फ्रिज में डालें। बिना धोए फ्रिज में नहीं डालें, बेटर रहे। जी, यानी प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी हैं। सोशल मीडिया पर एक और सवाल आया है, प्रवीण ममीदी पूछ रहे हैं, ये डेंटिस्ट हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्या रैपिड टेस्टिंग किट्स बेची जा रही हैं, क्या सेल पर हैं, यानी क्या वो खरीद सकते हैं रैपिड टेस्टिंग किट्स, और क्या वो अपने पेशेंट्स पर यूज़ कर सकते हैं ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले, क्योंकि वो डेंटिस्ट हैं तो जाहिर है बहुत क्लोज कॉन्टेक्ट में आते हैं वो पेशेंट्स के। डॉक्टर मलिक, आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। I'm not very sure कि रैपिड टेस्टिंग किट्स अवेलेबल है मार्केट में कि नहीं, क्योंकि जो रैपिड किट्स पहले आई थी इंडिया, they were all withdrawn because उनके जो टेस्ट रिजल्ट्स थे वो ठीक नहीं थे। बट अभी वैलिडेटेड टेस्ट किट्स है कि नहीं है, आई एम नॉट वेरी श्योर। वैसे if they are there and they are standardized and they are validated, then of course they can be used, बट अभी मुझे नहीं लगता हमारे पास इस तरह की किट्स अवेलेबल हैं। और वैसे भी गाइडलाइंस, जो ENT गाइडलाइंस जारी की गई हैं हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से, उन पर ध्यान देना ज़रूरी है, उनको फॉलो करना ज़रूरी है। The next caller we have is Sachin joining us on phone. Sachin is joining us from Delhi. Please ask the question, Mr. Sachin. Hello. Yes, Mr. Sachin, please ask the question. नमस्ते मैम। मैम मेरा 3 क्वेश्चन है। उसमें पहला क्वेश्चन ये है कि मुझे 18 साल से डायबिटीज़ है जी, और क्या मुझे हो सकता है वो हो सकता है। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि आप लोग ये कहते हैं कि हैंड वॉश करिए, हर कोई भी चीज़ टच करे हैंड वॉश करिए, पर आप लोगों ने ये नहीं बताया कि फेस भी हैंड वॉश, मतलब फेस पे पानी डालना है ना नहीं डालना, उसको क्लीन करना है ना नहीं करना। और थर्ड क्वेश्चन ये है कि कैसे हम सैनिटाइजर लगाते हैं तो हमारे पीछे पूरा जल जाता है। All right, so our caller faces inflammation after the use of sanitizer. Added to that, he's a diabetic patient. Dr. Rupali, would you address that question? देखिए, अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको ये कोविड-19 होने का रिस्क उतना ही है जितना एक नॉर्मल बंदे को है। बट अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है, उसके बाद आपको कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होने का डर है। आई होप ये आप समझ रहे हैं कि आपको एक्वायर करने का रिस्क उतना ही है जितना बाकी किसी और नॉर्मल बंदे को है। बट आपको अगर हो जाता है, उसके बाद आपको कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं नॉर्मल इंडिविजुअल से।
तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आप घर पे ही रहते हैं और घर में आपके कोई बाहर से आता जाता नहीं है और आप सारी सावधानी बरत रहे हैं, तो आपको घर बैठे बैठे ये इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं है, अनलेस कि आप बाहर जा रहे हैं या आपके घर में से बाकी लोग बाहर जाते हैं और तब ये इन्फेक्शन घर पे आने का रिस्क है। दूसरी चीज जो आप बोलते हैं कि मुंह धोना, देखिए अगर आप बाहर से आते हैं तो आपको मुंह जरूर धोना है, बट अगर आप घर में ही हैं तो आपको बार बार मुंह धोने की जरूरत नहीं है, आपको हाथ धोने हैं, क्योंकि हाथ से वो जाके मुंह पे इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है यूजुअली, ठीक है। तो इसलिए आपको हाथ धोना ज्यादा जरूरी है, मुंह हर बार धोना उतना जरूरी नहीं है। मुंह आप केवल तब धोएं जब आप घर से बाहर जाते हैं या आप किसी के कांटेक्ट में आते हैं, तब आप ऑब्वियसली मुंह भी धो सकते हैं। और जो आप बोलते हैं आपको सैनिटाइजर यूज करके इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो टाइम एंड अगेन वी हैव बीन टेलिंग दैट द बेस्ट मेथड इज दी सोप एंड वाटर। आप नॉर्मल पानी और साबुन से ही धोइए। और घर, अगर आप घर में हैं, किसी से मिल नहीं रहे हैं, कोई बाहर से कोई चीज अगर नहीं लेके आ रहे हैं, तो आपको घर में हर समय हाथ धोते रहने की जरूरत नहीं है। आप अगर लगता है आप खाना बनाने जा रहे हैं या आप कुछ इस तरह का कोई काम करने जा रहे हैं, कोई आप बाहर से कोई आई चीज को साफ कर रहे हैं, उसके बाद हाथ धोना बहुत जरूरी है। या आपने घर में कहीं साफ सफाई की है, तब आपको हाथ धोना जरूरी है। बट अगर आप कोई भी ऐसी चीज नहीं कर रहे हैं तो आपको बार बार हाथ धोने की जरूरत नहीं है। और सैनिटाइजर से आप सोप एंड वाटर प्रेफर करें। अगर सैनिटाइजर, अगर सोप एंड वाटर नहीं है, तभी केवल आप सैनिटाइजर को यूज करें। जी, ये कुछ ऐसी बातें जिन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगले कॉलर को लेने से पहले सोशल मीडिया पर एक सवाल है और बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल होता भी है। वंदना निगम सक्सेना पूछना चाहती हैं कि क्या कोविड-19 को प्रिवेंट करने में गर्म पानी पीते रहना, क्या ये सहायक है? डॉक्टर अग्रवाल। आयुष मिनिस्ट्री के हिसाब से ये कहते हैं, एलोपैथी वाइज मैं राइट पर्सन नहीं हूँ इस पर कमेंट करने के लिए, लेकिन आयुष मिनिस्ट्री की जो गाइडलाइंस हैं वो ये कहते हैं कि गर्म पानी पीने से आपको इसका संक्रमण होने के चांसेस कम हैं। पर कोई स्टडी नहीं है जिसमें ये प्रूव हुआ हो कि उससे कम होता है। वो लोग अभी स्टडीज प्लान कर रहे हैं, करेंगे तो फिर रिजल्ट्स उसके आएंगे। All right, from here we'll go across to our next caller. Mr. Rawat is joining us from Gurugram. Mr. Rawat, please ask your question. Mr. Rahul, please ask your question. Sorry, my name is Rahul Thakur. Yes, I beg your pardon. Mr. Rahul Thakur, please ask your question. Hi, my question is like as of now, since we are mostly talking about the corona, but what about the mortality rate of other diseases? What is the current situation? How our system is fighting with the other diseases? Because I think there will be multiple other diseases which due to which there are many people dies in the country. And one more thing, World Health Organization also has given the input like the kids which has newly born, they are not getting the proper vaccination and all. And one my query is to the DD News is like in the time of वोट्स एंड ऑल मीन्स जब कहीं इलेक्शन वगैरह होते हैं देन वी गिव ए कंप्लीट काइंड ऑफ सर्वे कि हरियाणा में इतने सीट्स हैं, ये है वो है। तो अभी हम जो हमारा जो रिव्यू जो भी चल रहा है न्यूज़ पे किसी भी चैनल पे जो चल रहा है दैट इज नॉट वेरी वास्ट, मीन्स हर एक स्टेट वाइज प्रॉपरली इनपुट्स नहीं आते हैं कि इस स्टेट में इतने वेंटिलेटर हैं, इतने मरीज हैं, इतना ये है, इतना ये है। जबकि कभी भी कोई कहीं पर इलेक्शन होता है तो हमें एक एक सीट के बारे में कि वहाँ पर कौन सा नेता है, आज की डेट में हम कोई भी हमारे को ये न्यूज नहीं मिल रही है। राहुल जी, आपने मीडिया को लेकर आपने मीडिया को लेकर जो सवाल उठाया है उसको दरकिनार करते, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स मीडिया पर कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन डॉक्टर से जुड़ा जो सवाल है वो जरूर हम पूछ लेंगे। डॉक्टर से जुड़ा सवाल मैंने इसीलिए पहले ही रखा क्योंकि चलिए हम उसी का जवाब डॉक्टर मलिक से पूछना चाहेंगे। डॉक्टर मलिक, क्या कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, इनकी बात बिल्कुल सही है कि इस समय में जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं उनकी केयर थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। लिमिटेशंस हैं, पेशेंट्स ट्रैवल करके हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहे हैं, बहुत सारे छोटे अस्पताल बंद हैं, बहुत सारे अस्पतालों को कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये मैं मानती हूँ ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, बट ऐसा नहीं है जो आपकी जो भी मतलब, जैसे मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में काम करती हूँ तो हमारे यहाँ जो भी रूटीन सर्विसेज हैं, जो भी आपके सिक पेशेंट्स हैं, उनका सब जो भी आपका जरूरत है वो सब चीजें हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि उनका कुछ भी इलाज नहीं हो रहा है या उनको देखने के लिए कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। उनके लिए जो भी पॉसिबल है, जो होता है, वो सब चीजें हो रही हैं।
थोड़ा मैं मानती हूँ कि प्रायोरिटी कम है उन चीजों की अभी, बट ऐसा नहीं है कि उन पेशेंट्स का इलाज नहीं हो रहा है या उनको कोई देख नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। जी, और इस वक्त रघुवीर सिंह हमारे साथ दिल्ली से ही जुड़ गए हैं अपने सवाल के साथ। जी रघुवीर जी, सवाल क्या है आपका? मैडम मैं शुगर पेशेंट हूँ, डायबिटीज है। जी जी बताइए। तो मैं ड्यूटी, सरकारी ड्यूटी है, जैसे बुलाते हैं ड्यूटी पे, कि ड्यूटी पे जाऊं कि नहीं जाऊं, बाहर जाने में खतरा, आसपास क्वारंटाइन काफी हो रहे हैं ना लोग। Dr. Malik, would you take that question, please? हाँ जी। सॉरी, दोबारा एक बार पूछेंगे। He is a diabetic and he wants to know whether he can go to his office for work. He is a government employee and he wants to know whether he should go step out of his home or not. What is his age? What is his age? कितनी एज है? माफ़ी चाहते हैं, फ़ोन कट गया है, लेकिन अगर हम ये मानकर चलें कि 40-50 के आसपास की अगर उम्र के लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है, तो ऐसे में डॉक्टर मलिक उनको क्या प्रिकॉशंस लेने होंगे? क्या वो उनके मन में ये डर है कि क्या उन्हें घर से बाहर जाना चाहिए या जॉब पर जाना चाहिए, ऑफिस जाना चाहिए? डायबिटीज एक इम्पोर्टेंट कोमॉर्बिडिटी है जिसमें कि कोविड पेशेंट्स में ज्यादा मोर्टालिटी देखी गई है, तो जाहिर सी बात है डायबिटिक पेशेंट्स के मन में डर ज्यादा है। बट उनका, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, रिस्क ऑफ एक्वायरिंग द इन्फेक्शन, मतलब किसी से इन्फेक्शन होने का चांसेस उनका भी उतना ही है जितना किसी नॉर्मल इंडिविजुअल का है, बट इन्फेक्शन होने के बाद उनको कॉम्प्लिकेशंस होने का डर ज्यादा है, इसलिए उनको सावधानी थोड़ी ज्यादा बरतनी है। आप समझ रहे हैं, आपको उनको अवॉइड करना है कोई भी सोशल गैदरिंग को। अगर ऑफिस जाना भी है तो आप प्रेफर करें कि आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ना यूज करें, आप अपना पर्सनल व्हीकल यूज करें, आप मास्क अच्छे से पहने, हर समय पहने, जब भी आप घर से बाहर हैं आप अपने हाथ धोते रहें, ग्लव्स पहन लें, आप थोड़ा एक्स्ट्रा केयर लें, ग्लव्स पहन लें, उसके बाद भी आप सैनिटाइज करते रहें, बीच में हाथ धोते रहें। बहुत बार क्या होता है, ग्लव्स पहन के यू हैव अ सेंस ऑफ फॉल्स सिक्योरिटी, आपको लगता है कुछ भी छू सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप ग्लव्स पहन के भी कोई काम करते हैं, स्टिल यू हैव टू मेंटेन सैनिटेशन, यू हैव टू कीप सैनिटाइजिंग इन बिटवीन और अपने हाथ धोते रहें। डॉक्टर मलिक, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल सोशल मीडिया पर भी आया है। शशि सिंह राजपूत पूछ रहे हैं कि इनको कई बार हेडेक होती है और ऐसे में अब इनको ऑफिस भी अटेंड करना है, तो इनको भी क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? देखिए, हेडेक इज अ नॉर्मल सिम्टम जो किसी भी और कारण से भी हो सकती है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है हर हेडेक का पेशेंट कोविड-19 है, जैसे कि पहले हम बोलते थे सोर थ्रोट के लिए। तो आजकल हेडेक के लिए भी लोग काफी वरिड हैं कि हेडेक होना कहीं कोविड-19 का सिम्टम तो नहीं है। बट अगर आपको फीवर नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री नहीं है, तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए कोई भी पेन किलर ले सकते हैं, क्रोसिन ले सकते हैं, और उसके बाद आप सावधानी बरतिए। अब देखिए, ये कोरोना इतनी जल्दी थमने वाली चीज नहीं है, हमें एक लंबी लड़ाई लड़नी है और आगे भी सब चीजें, अपने काम पे भी जाना है, बाकी चीजें भी करनी है। तो एक ही चीज है जो हमें बचा सकती है, वो है सावधानी। हमें सावधान रहना है, हर वक्त सतर्क रहना है, अवेयर रहना है और सही चीजों का पालन। जो आप प्रिकॉशंस लगातार बता रहे हैं, उन प्रिकॉशंस को भी लगातार ध्यान में रखना है। डॉक्टर अग्रवाल, एक और बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमारे सोशल मीडिया पर एक दर्शक पूछ रहे हैं, अमित उपाध्याय, ये कह रहे हैं कि इनके पास 2 वॉशेबल मास्क का सेट है और सिर्फ ये जानना चाह रहे थे कि उन्हें कैसे धो के स्टोर करें। वो दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, जो वो जानना चाहते हैं कि जब वो मास्क पहनते हैं तो गर्मी का मौसम है, पसीना आता है, तो मुंह पे, नाक के आसपास जो पसीना आता है वो मुंह पे जाता है, कितना रिस्की है ये? आपका मास्क कॉटन का होना चाहिए, वो जरूर ध्यान दीजिए। और कॉटन का मास्क अगर होगा तो पसीना एब्जॉर्ब करेगा, फिर वो पसीना टपकेगा नहीं। हो सकता है कि आपका मास्क सिंथेटिक हो, इसलिए वो ज्यादा प्रॉब्लम। जहाँ तक धोने का सवाल है, साबुन से धोएं नॉर्मली जैसे धोते हैं और उसको फैला दें। धूप में फैला सकते हैं तो बेटर है, धूप में एक बार सूख जाएगा तो इट इज रेडी फॉर यूज नेक्स्ट टाइम। एक बार जब क्लॉथ का मास्क पहना है, वो एट अ स्ट्रेच 6 से 8 घंटे पहन सकते हैं, प्रोवाइडेड इट डज नॉट गेट वेट। अगर आप ऐसी जगह में काम कर रहे हैं जहाँ पसीना बहुत आता है और मास्क वेट हो गया है, तो फिर अपने पास आप एक्स्ट्रा मास्क रखिए जिसको चेंज कर सकते हैं। और एक बार कभी भी बाहर जाएं, घर आने के बाद में उसको रीयूज ना करें बिना वो चीज। एक और सवाल लेना चाहेंगे सोशल मीडिया से ही। निर्मला सप्रू पूछ रहे हैं कि क्या
अल्ट्रा वायलेट लाइट को लेकर ये पूछ रहे हैं, कई बार ऐसी खबरें भी आती हैं, वो पूछ रहे हैं कि कितना सेफ है अल्ट्रा वायलेट लाइट को सैनिटाइज करने के लिए, यूज़ करने के लिए, खासकर जो डिवाइसेस हैं या मोबाइल फ़ोन्स हैं इनके इस्तेमाल के लिए, इनको सैनिटाइज करने के लिए। कई जगह अभी देखा गया है बाहर की कंट्रीज में, अभी हमारे इंडिया में नहीं शुरू हुआ है, कि उन्होंने स्कूल्स के बाहर, ऑफिसेज के बाहर में ये डिवाइसेस रखे हैं जहां अल्ट्रासोनिक रेज से वो सब कुछ सैनिटाइज कर देते हैं। आप जो भी अपने साथ में बैग, टिफिन, मोबाइल फोन्स, बुक्स जो भी लेकर के जा रहे हैं वो पूरा का पूरा उसमें डालते हैं और वो सैनिटाइज हो जाते हैं। तो जरूर ये हेल्पफुल है, कुछ नहीं करने से इट इज डेफिनेटली बेटर। All right, we'll get our next caller here in, but before that, Dr. Malik, very quickly, I would want you to understand from you the rate of transmission, because we know that initially we have the symptoms of influenza, we have flu-like symptoms, wherein, you know, the danger or the threat begins. What is the rate of transmission when we talk of R0? And there is a doubt, there is a myth amongst the people wherein they believe that it is less likely than flu. Is it so? No, the R0 for COVID-19 is 2.8, whereas for the normal flu it is 1.3. That means in COVID-19, each infected individual will in turn infect around 3 individuals, 2.8 or roughly around 3 individuals. Whereas for normal seasonal influenza, it is still 1.3. So it is much less than half of what it is for COVID-19. So that is why we say it is much more infectious, and that seasonal influenza has been there for a very long period. So बहुत सारे लोगों में already pre-existing immunities हैं seasonal influenza के लिए. But this COVID-19 being a novel virus, none of us is immune to it. तो जो भी expose होगा वो infect होगा. Whether asymptomatic carrier he becomes, or he becomes symptomatic, or he becomes critically ill, that depends on the patient's immune system. But whosoever will be exposed will get infected for sure. I hope you understand this. Yes, and all I right. made it clear. All right, we'll bring our next caller here. We are joined in by Miss Anjali from Patna. Miss Anjali, please ask your question. हेलो मैम। Yes. मुझे 1 month से ब्रीथिंग प्रॉब्लम है और लेफ्ट साइड चेस्ट में लिटिल पेन भी होता है कभी कभी, लेकिन तो मैम जस्ट आप ये बीच में मुझे 2-3 दिन ठीक भी हो गया था, उसके बाद फिर से स्टार्ट हो गया है। तो मैम ये कोई सिम्टम्स तो नहीं है, और मेरी एक बेबी भी है 1.5 years की, तो उसको फीड भी करवाती हूँ, तो इसमें उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। All right, Dr. Agarwal, will you take that question? Those 2 questions? 1 month से आपको अगर सांस की तकलीफ है और छाती में दर्द है तो आपको डेफिनेटली अपना चेकअप करवाना चाहिए। कोरोना के चांसेस कम हैं क्योंकि आपको फीवर नहीं है और तकलीफ बढ़ी नहीं है। बीच में आप बोल रहे थे इम्प्रूवमेंट भी हो गई है। बेबी को आप बिल्कुल फीड करवा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी लेकिन जांच आपको जरूर करवानी चाहिए, क्योंकि अगर 1 महीने से सांस की तकलीफ है और छाती में थोड़ा दर्द है तो आपको जांच करवानी चाहिए। लंग में कोई प्रॉब्लम है या प्लूरा में कोई प्रॉब्लम है वो देखना होगा, पानी तो नहीं भरे फेफड़ों में, वो चीज की जांच। एक और सवाल लेते हैं, मिस्टर साहनी दिल्ली से बात करना चाहते हैं। मिस्टर साहनी अपना सवाल पूछें। I would like to say first of all that मेरी फैमिली में 7 लोग हैं डॉक्टर साहब, हम सब लोग कोविड पेशेंट हैं अनफॉर्चुनेटली, और हम में से 3 लोग जो हैं एसिम्प्टोमेटिक हैं और बाकी लोगों को सिम्टम्स हैं। मेरा ये आपसे सवाल है कि क्या एसिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट्स होते हैं अगर वो बहुत ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट में आते हैं बाकी सिम्टम्स वालों से, तो क्या वो भी एसिम्प्टोमेटिक से ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं? डॉक्टर मलिक? हाँ जी, नहीं ऐसा तो नहीं होगा। अगर आप ऑलरेडी एसिम्प्टोमेटिक हैं, आपको कितने दिन हो गए एसिम्प्टोमेटिक हुए? अगर आपको 2 weeks तक हो चुका है तो मोस्ट लाइकली आप एसिम्प्टोमेटिक ही रहेंगे। मोस्ट जो पेशेंट्स होते हैं दिस मैनिफेस्ट विद इन 1 week। तो अगर आपको 1 हफ्ते के अंदर सिम्टम्स नहीं आए हैं तो बहुत अनलाइकली चांसेस है कि आप, क्योंकि बाकी कोविड पेशेंट्स के बीच में रह रहे हैं, तो आप ज्यादा सीरियस सिम्टम्स डेवलप करेंगे या आपको सिम्टम्स डेवलप अनलाइकली है।
जी Alright, एक सोशल we are- मीडिया से एक सवाल पूछते हैं जो बहुत प्रैक्टिकल है क्वेश्चन। रंगनाथ पालिया पूछना चाह रहे हैं कि घर में ये कॉमन सीढ़ी इस्तेमाल की जाती है और उसे हर बार सैनिटाइज करना संभव नहीं होता, तो वे पूछ रहे हैं कि कोरोना वायरस लोहे या मिट्टी की सतह पर कितनी देर में अपने आप नष्ट हो जाता है, क्योंकि बाजार से जब वो आते हैं उदाहरण के तौर पर और ये कॉमन सीढ़ी इस्तेमाल करनी है और सैनिटाइज नहीं कर सकते बार बार, तो फिर क्या विकल्प हो सकता है, किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए? डॉक्टर मलिक, आप इसका जवाब दे सकते हैं। हाँ जी, देखिए जो आपके सतह होते हैं इन पे डिफरेंट टाइम के लिए वायरस रह सकता है। जैसे प्लास्टिक या ग्लास में वो रह सकता है अराउंड 3 डेज, कुछ लोग कहते हैं 1 हफ्ते तक भी रह सकता है, बट एटलीस्ट 3 डेज एवरीवन एग्रीज दैट इट कैन स्टे ऑन प्लास्टिक एंड दी ग्लास सर्फेसेस, एंड इवन ऑन स्टील इट कैन स्टे फॉर 24 आवर्स। ब्रास पे 4 आवर्स के लिए रहता है। तो अगर आप कोई कॉमन स्टेयरकेस यूज कर रहे हैं तो बेस्ट चीज है आप उस समय जो रेलिंग होती है स्टेयरकेस की उसको ना छुएं। ये आप बहुत पॉसिबल है कि बिना छुए आप चढ़ सकते हैं, बट अगर फिर भी ऐसा है कि आपको छूना जरूरी है तो आप ग्लव्स अगर पहन सकते हैं तो आप ग्लव्स पहनिए, और जब आप रेलिंग छू के घर पहुंचते हैं इमीडिएटली जाके आप अपना हाथ धोइए, मुंह धोइए, और तब तक आपको अपना मुंह, नाक, आँख ये सब चीजें नहीं छूनी है। आप समझ रहे हैं? तो ये तो है कि चांसेस हैं कि 3 दिन तक ये वायरस कम से कम रह सकता है इस तरह के सरफेस पे, और अगर पॉसिबल हाइड्रोक्लोराइड से आप उसको सैनिटाइज कीजिए। The virus can survive for up to 3 days. We're running short of time. We will end this special edition here. Thank you so much, both of you, Dr. Agarwal and Dr. Malik, for joining us and sharing those insights and answering the questions. Time and again, we have been reminding our viewers of the safety and the precautions which have to be taken. Every day, we have a new set of doctors who clear your doubts, who clear your myths. But again, the crux and the most important aspect of this fight against COVID-19 in keeping yourself safe is to take precautions. Isolation, maintaining social distancing, and the most important of all is maintaining personal hygiene. Wash your hands regularly with soap and water, and also use of sanitizer is important if soap and water is not readily available. And it is only through this that you can keep yourself and your near and dear ones safe. तो इसी बात के साथ कि आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें और सारे प्रिकॉशंस बरतें, मैं और प्रीति लेते हैं आपसे इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।